A very good morning to all of you, my dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. Today in this class, I am going to discuss about one of the most important provision of Indian Constitution, that is the Directive Principles of State Policy, which has been described in Part 4th of Indian Constitution. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPSP के नाम से जानते हैं, it is a borrowed provision, you know also. And from which constitution we have borrowed it? Yes, from Irish constitution. और स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जो आयरिश प्रोविज़न है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में दिस प्रोविज़न को इट हैज़ बीन बोरोड ऑल्सो? यस, for Irish constitution, directive principle of state policy, it's also a borrowed provision. And from which constitution it has borrowed? Yes, from Spanish constitution. You should have to know this. स्पेन से आयरलैंड बोरो किया था, और फ्रॉम आयरलैंड और फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर दे हैव बोरोड दिस प्रोविज़न. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 4 में इसका मेन एम क्या है? यस, टू स्ट्रेंथन द सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. आप लोगों को पता होगा, जो फंडामेंटल राइट है, जो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका मेन एम क्या है? यस, टू एस्टैब्लिश political democracy in Indian, to establish political democracy in India. So let us move towards the depth of the study. We should have to analyze what is directive principle of state policy, and simultaneously we should have to analyze what are the most important features within these grounds and what are the most important objectives within it, so that India could able to get its destination to achieve the socio-economic development in Indian context. So without lapsing our time, let us move towards this important provision of Indian Constitution, that is Directive Principle of State Policy. So students, as you know, in its part 4, the Constitution of India describes the directive principle of state policy, जिसको हम DPSP से जानते हैं. कौन से पार्ट में डिस्क्राइब हुआ है? पार्ट 4th. You also know from your +2 level. It's very easy. So in which part of Indian Constitution the directive principle of state policy has been written about? Yes, in its part 4th or IV. So in part 4th, it lists a set of principles which are to guide the future policies of the state. Sorry student, यहाँ policies होगा. It has to guide for the future policies of the state. Further, it is designed as a supplementary part to part 3rd. पार्ट 3rd में जहाँ हम फंडामेंटल राइट्स की इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को पाते हैं, पार्ट 4th में DPSP और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया को पा रहे हैं, जहाँ इसका बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है किस फील्ड में? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंडिया में बिल्ड करने के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अटेंड करने के लिए. तो इसको याद रखना, क्योंकि फंडामेंटल राइट की मेन एम क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का मेन एम क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना. सो एज फार एज DPSP इज कंसर्न, इट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक राइट्स एंड फ्रीडम्स which the state is expected to secure for the people through suitable legislative enactment. जैसे कि मैंने कहा है, इसका मेन मकसद क्या है?
to establish social and economic democracy in India. That's why it contains a list of social and economic rights for the people. और social और economic rights की जो लिस्ट हम यहाँ देखते हैं वहाँ पर स्टेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे? थ्रू दी enactment of legislation by making laws to incorporate different kind of social and economic rights for the people. The Parliament of India in different period of time taking into account the needs of the people, the demand of the people, taking into account the situation of the country, बहुत सारा सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को इनकॉर्पोरेट करता है. और जहां हम सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की एक बेटर फाउंडेशन को हम पाते हैं. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इट टुगेदर कंस्टिट्यूट ए मैनिफेस्टो फॉर सिक्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशंस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी. तो लेटर पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करता है. In different articles, we will review in its different principles. So let us understand what are the most important features under part 4 that includes within the ground of directive principle of state policy. So first of all, we should have to understand the objective of DPSP. So what is the main aim of this part 4? But there we find directive principle of state policy which contain some social economic rights for the people. Yes, the main aim of this part or the main aim of directive principle of state policy is to provide for a welfare polity. Understand here, to provide for a welfare polity or welfare state which will be characterized by social, economic and political justice for its people. तो इसका मकसद क्या है? To establish a welfare state where all people will get social justice, economic justice and political justice. तो Article 38 explains the objective of DPSP. इसको याद रखना. The state where the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in a state in which justice must be reached to the life of the people by securing and protecting as effectively as it may social order in which justice, social, economic, political shall inform all the institutions of national life. The state is to secure justice by securing these principles through effective legislation. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसका मेन मकसद क्या है? टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया and to attain a welfare state, and how it can be realizable, how it can be we able to get. तो वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट की बात जब करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की वो एस्टैब्लिश करने की जब बात करते हैं, तो इसको हम रियलाइज़ कैसे करेंगे? अगर हर सेक्शन, हर वर्ग के लोगों को अगर सोशल जस्टिस नहीं मिलता है, पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिलता है, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिलता है, तो डेमोक्रेसी की तो वैल्यू नहीं रहेगा. तो डेमोक्रेसी को सोशली एंड इकोनॉमिकली एस्टैब्लिश करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पाथ को फाउंड करता है, जहां इम्पॉर्टेंट कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम यहाँ देखते हैं. जहां क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देख रहे हैं, विच कंटेन some of the important principles here. First, socialistic principles. Next, Gandhian and liberal Gandhian principles. And number third, that is liberal and intellectual principles. तो स्टूडेंट्स, इसके ऑब्जेक्टिव को बेस करके
इसका जो मेन मकसद है इसको बेस करके देयर वी फाइंड हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर. बेसिकली 3 important principles are there: socialistic, Gandhian, and liberal or intellectual. So one by one here we will discuss all these principles, and through all these principles we will able to get the clear cut idea about directive principle of state policy. So first of all, socialist principles. These principles reflect the ideology of socialism. They lay down the framework of a democratic socialist state which aim at providing social and economic justice and set the path towards a welfare state. तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में हम क्या देखते हैं? एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट की फ्रेमवर्क को देखते हैं जिसका मेन मकसद, मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड social and economic justice to the people and to establish a welfare state where they direct the state. In which way? To promote the welfare of the people by justice, social, economic and political, and minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंडिया में कैसे एस्टैब्लिश होगा? एक वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट जो है हम लोग को रियलाइज़ करना है, कैसे हम कर पाएंगे? तो इसके लिए सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स यहाँ लेट डाउन है थ्रू दी प्रोविज़न ऑफ सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 38 में क्या डिस्क्राइब हुआ है इसको याद रखना. टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, and how this welfare it will be attained? By providing all kinds of people without any distinction, बिना कोई भेदभाव करते हुए हर एक वर्ग की पीपल को, हर एक वर्ग की पॉपुलेशन को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस डेफिनेटली मिलना चाहिए. और उनके बीच में, उनके जो बीच में जितने भी है इनइक्वालिटीज़ विद रिगार्ड टू देयर इनकम, स्टाटस, फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, इसको मिनिमाइज करना चाहिए. तभी जाकर हम एक इक्वल ऑर्डर को एस्टैब्लिश कर सकेंगे और सोशल डेमोक्रेसी साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को हम इस देश में हम रियलाइज़ कर सकेंगे, जिसका मेन मकसद डीपीएसपी का है, जो कि मेन मकसद डीपीएसपी का है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल व्हाट इट इज़? To secure the right to adequate means of livelihood for all citizens. जैसे कि हर एक सिटीजन्स, हर एक वर्ग की पॉपुलेशंस को एक एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए. उनके बीच में कोई भी इनइक्वालिटीज़ नहीं रहना चाहिए. उनको हर एक को जीने के लिए जितने भी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट टू वर्क, इसको आगे जाकर डिस्कशन करेंगे. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर अंडर आर्टिकल 39A, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस in cases of unemployment, old age, sickness, and that has been provided under Article 41. तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में क्या है? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जो राष्ट्र की संपत्ति है उसका सम बंटन होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. एंड फॉर व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ कॉमन गुड, प्राइवेट गुड के लिए नहीं, पब्लिक गुड के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. साइमल्टेनियसली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सेम काम के लिए जो मैन एंड वुमेन करते हैं उनको सेम वेजेस मिलना चाहिए, जो भी एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ 39A जिसको याद रखना है आप सभी को, फ्री लीगल एड शुड बी गिवन टू द पुअर. जो पुअर कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, अगर
उनके कोई प्रॉब्लम होता है और उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए फ्री लीगल एड की प्रोविज़न भी यहाँ हम क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं, 39A के अंदर, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को डील करता है। साइमल्टेनियसली टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। एंड पब्लिक असिस्टेंस मेनली इन व्हिच स्फीयर, जो कि बेरोज़गार हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, उनके केयर करने के लिए, जो सिक पीपल हैं उनको ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड आर्टिकल्स में, जिसको लेकर हम सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को हम अचीव कर सकते हैं, और फाइनली इंडिया की जो वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट है इसको हम रियलाइज कर सकेंगे। Thereafter, to make provision for just and human condition for work and maternity leave, which comes under the Article 42, and thereafter under Article 43, to secure a living wage, a decent standard of life, social and cultural opportunities for all workers. तो जैसे कि हम लोग देखते हैं एक ह्यूमन कंडीशंस ऑफ लिविंग, ह्यूमन कंडीशंस, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, and simultaneously maternity leave is also very important for the women, and that comes under Article 42. A decent standard of life, cultural opportunities for all workers, this also comes under the socialistic principles. तो students, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की जो बात करता है, these are some important articles where they are defined all these socialistic principles where India has to attain a welfare state with a better implementation of all these articles and provisions of our Indian Constitution. Thereafter, to take steps to secure participation of workers in the management of industries. जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहां हम वर्कर्स की पार्टिसिपेशन बहुत ही कम देखते हैं, वहाँ पर डीपीएसपी क्या बात करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स मस्ट बी देयर, आर्टिकल 43A में, और टू रीच द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर न्यूट्रिशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 47 में क्लियरली डिस्क्रिप्शन हुआ है, जो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के बाद हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पाते हैं, दैट इज़ गांधीयन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा गांधी, द फादर ऑफ नेशन, ही वॉज ऑलवेज सेइंग, इफ यू वांट टू डेवलप डेमोक्रेसी इन इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल you should have to, if you want to develop democracy in India, you should have to keep your close eyes on its grassroots level. In the grassroots level, where there are numerous villages are there, first of all you should have to bring about the development of this rural India, the rural masses, so that the democracy will prosper and democracy will progress. So under these Gandhian principles, there we find the most important article, that is Article 40, which says about what, बहुत ही important article है, जहाँ डिस्क्रिप्शन हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टाटस को गेन किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशन से फॉलो हुआ था। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत पहले कौन किए थे, महात्मा गांधी, और उनका ये मानना था अगर हमको डेमोक्रेसी को डेवलप करना है तो रूरल इंडिया, जहाँ पर गांव बसता है, उसको डेवलप करना चाहिए। वहाँ पर जो न्यूमेरस विलेजर्स है और उनका जो लाइफ एमिड्स डिफरेंट काइंड ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है,
उसको हमको नज़र डालना चाहिए, अटेंशन ड्रॉ करना चाहिए गवर्नमेंट की, तभी जाकर डेमोक्रेसी आगे बढ़ सकता है। तो इस आइडिया को लेकर हम आर्टिकल 40 में क्या पाते हैं, विलेज पंचायत को पाते हैं। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हियर, दैट इज आर्टिकल 43 which says about the promotion of cottage industries। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो गांधी he was always used to say सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करते थे, एक आत्मनिर्भरशील भारत वर्ष की वो बात करते थे जहाँ हर एक इंडियन अपने ही पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उसको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और वो कैसे संभव होगा, अगर हम कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अपने बलबूते पर खड़े कर सकते हैं तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, हम खुद ही अपना एंटरप्रेन्योर अपने ही लेवल में हम क्रिएट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है गांधीयन प्रिंसिपल्स की, जहां हम डीपीएसपी के मेन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन को पाते हैं और जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 43 में हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसको याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत अंडर आर्टिकल 40 और कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो प्रमोशन है की बात करते हैं, वहाँ पर हम कौन से आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 43। देयर आफ्टर to promote the educational and economic interest of SC/ST communities and other weakened sections which comes under article 46। तो हमारी जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल अगर हम करना चाहते हैं हर एक वर्ग की, हर एक कम्युनिटीज ऑफ पीपल की, तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो SC/ST को बिलोंग करते हैं और वीकर सेक्शंस और कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, तो उनको नहीं मिल पाता है कंपैरेटिवली जो दूसरे सेक्शंस ऑफ पीपल है उनके कंपेयर से नहीं मिल पाता है। तो उनका एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए रिजर्वेशन जो फैसिलिटीज़ है, यहाँ हम आर्टिकल 46 में हम देखते हैं, जो कि एक भी गांधीयन प्रिंसिपल्स को डील करता है। देयर आफ्टर under article 47 there has been also provided an important provision here, that is to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। जो इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स होता है, जो ड्रग्स लेते हैं लोग और जो कि बहुत ही इंजूरियस होता है हेल्थ के लिए, उसको प्रोहिबिट करने की बात करते हैं गांधी और गांधीयन प्रिंसिपल्स में हम अंडर आर्टिकल 47 में इसको हम पा रहे हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, इट हैज़ बीन सेट अंडर दिस प्रोविजंस। एंड thereafter to prohibit slaughter of cows, calves and other and draught cattle and to improve their breeds under article 48। आर्टिकल 48 में जो गौ हत्या होता है और जो निर्मम तरह से उनको जो किल करते हैं, और जहाँ हम क्या देखते हैं, जो उनका जैसे कि अमानवीय अत्याचार जिसको कहते हैं, इनह्यूमन एक्सप्लोइटेशन, इनह्यूमनली इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको बैन करने की बात भी करता है आर्टिकल 48 अंडर गांधीयन प्रिंसिपल। सो दीज आर टू important principles, that is the socialist principles and the Gandhian principles, where there we discussed some important articles. It should be remembered by all of you, which are very important from examination point of view. And number 3, that is liberal or intellectual principles. So let us see what are the most important thing here, which contain the idea or the ideology of liberalism. So let's see what are the important principles here under which articles. So liberal principles first contain to secure for all citizens a uniform civil code throughout the country. Quote,
throughout the country under Article 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की एस्टैब्लिशमेंट और सिक्योरिंग की बात करता है आर्टिकल 44 एंड देयर आफ्टर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन आर्टिकल 48 में एंड देयर आफ्टर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री अंडर आर्टिकल 48 thereafter to protect and improve the environment under article 48A to protect monuments places objects artistic and historic interest thereafter to separate the judiciary from the executive in the public services of the state under article 50 and to promote international peace and security and to maintain just and honorable relations between nations under article 51. So these are important articles that we find under the liberal intellectual principles which contain the ideology of liberalism. The first important है Uniform Civil Code, thereafter provision of early childhood care and education for children, thereafter organization of agriculture and animal husbandry, improvement or protection of environment. Simultaneously जो हमारे जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है उसका प्रोटेक्शन करना अंडर आर्टिकल 49 देयर आफ्टर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज क्योंकि इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशियरी की जो मेन इम्पोर्टेंस है इसको अचीव करना है टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल अंडर आर्टिकल 50 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए और जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए बिटवीन नेशंस दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 51. So these are very eminent and ornamental principles that has been described under the liberal and intellectual principles of DPSP or Directive Principle of State Policy. तो स्टूडेंट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हम लोग अभी तक डिस्कशन कर चुके हैं 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को. फर्स्ट सोशलिस्ट, देयर आफ्टर गांधीयन एंड देयर आफ्टर लिबरल. तो हर एक प्रिंसिपल्स के एक स्पेशलाइजेशन है, एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट फील्ड ऑफ डेवलपमेंट के लिए, इन डिफरेंट फील्ड ऑफ प्रोटेक्शन के लिए. जहां हम क्या पाते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को अटेंड करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन को हम पा रहे हैं जिसको लेकर इंडिया एक वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को फुली रियलाइज कर सकता है. हर एक सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करता है डीपीएसपी. ऑफ कोर्स इट इज़ नॉन एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, स्टिल these are very important principles. If government of India will implement all these principles, no doubt the social and economic foundation of this country, the social and economic foundation of democracy of India, it will definitely create a new era in Indian politics for the development, progress and protection of this country. So students, these are very important principles. पर इसके साथ हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे सम न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो कि 1976 में एडेड हुआ था. तो हाउ मेनी न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर देयर? मेनली 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर देयर. फर्स्ट, to secure opportunities for healthy development of children, that comes under article 39. तो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है आर्टिकल 39 जिसका ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट के अंदर जब मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. देयर आफ्टर टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, that has been described under which article? 39A. इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और thirdly, participation of workers in the management of industries under article 43A, and there are under 48A there has been the protection of environment and safeguarding the forest or wildlife. So these are some important articles that has been added under 42nd Amendment Act which was passed in the year 1976 when Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister of India.
तो स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा 1976 में इंडियन प्रियम्बल के अंदर सोशलिज्म, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका इंक्लूजन हुआ था। और इसको लेकर 1976 में जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को हम देख रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 39, फ्री लीगल एड टू द पुअर अंडर आर्टिकल 39A, participation of workers in the management of industries, simultaneously improvement of environment or protection of environment, protection of wildlife under article 48A. These are very important one to provide a very sound development of human life, wildlife, to create a balanced environment of development, and to provide social, economic and political justice to all groups of people, all communities of people, so that India would able to get the realization of an idea of welfare state in this country. The Indian democracy will prosper, will progress if all these principles will effectively implement by the government of this country, so that we can able to realize the concept of Ramarajya through the incorporation, through the perfect implementation into different plan and policies of the government from time to time. So these are very important student, इसको याद रखना। And जो 44th amendment हुआ था 1978 में, one more directive principles का inclusion हुआ है, which requires the state to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities under article 38. इसको याद रखना। 44th amendment act जो 1978 में आया था, तो वहाँ पर जब मोरारजी देसाई was the prime minister of India, in that period of time एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इंक्लूजन हुआ है, जिसका मकसद क्या है? टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज among the people with regard to their income, status, facilities and opportunities. तो इसको याद रखना। और one more important amendment is there, that is the 86th Amendment Act of 2002. It changed the subject matter of Article 45 and made it elementary education a fundamental right under Article 21A, जहाँ हम right to life को पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको याद रखना, जो कि आर्टिकल 45 के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहाँ पहले हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम लोग देखते थे, उसका जो रिप्लेसमेंट हुआ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इंक्लूजन हुआ कहाँ? फंडामेंटल राइट ऑफ लिस्ट में। किस अमेंडमेंट में? 86th अमेंडमेंट में। और कौन से ईयर में ये था? 2002। और फंडामेंटल राइट नाउ द राइट टू एजुकेशन, जहाँ 6 to 14 एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, दे विल हैव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन in their life, and that has been broadly provided, specifically provided under Article 21A of Fundamental Right List of Indian Constitution. So these are most important contribution, these are most important provision of Indian Constitution. With all these ground up important contributions, we are able to find a perfect social economic democracy in India, where we are able to realize the concept of the welfare state. So the limitation here it is fundamental right और DPSP की जब बात होती है, one of the most important differences there, fundamental right is directly enforceable in before the court of law, but directive principle of state policy, it is not directly enforceable in the court of law. So this is the most important lacuna where it is we are not able to perfectly implement all these important policies. So डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, जिसकी परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ज़मींदारी एवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म,
रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिशमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, simultaneously the protection of women class, simultaneously the protection of children. Thereafter labor welfare legislation, thereafter encouragement of small scale and cottage industries, agriculture, animal husbandry program, free and compulsory education, and to reach the living standards of life of people. All these things constitute the ornamental provision within the democratic framework, where we are able to get a proper and efficient democracy if all these principles are being effectively implemented by the Government of India in its different plan and policies, with the help of which we will able to realize the concept of true democracy in a true democratic framework, to realize the concept of welfare state. So these are the most important provision of Indian Constitution. Hope you understand, student. If there will be any kind of doubts, share with me. So see you in next class. Till then, have a nice day. Goodbye all of you.